वेलकम टू ब्रॉडवे A2E अकेडमी। मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज अपनी वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी 3rd of September IELTS एग्जाम प्रेडिक्शन। सो 3rd of September is the first date in the month of September for the IELTS candidates who want to give their IELTS test। सो कैसे रहेगा आपका टेस्ट, एग्ज़ाम का लेवल कितना डिफ़िकल्ट और कितना ईजी आएगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो शुरू करते हैं सबसे पहले मॉड्यूल्स के साथ लिसनिंग। सो कैसा रहेगा आपका लिसनिंग का टेस्ट? सो इट विल बी इजी टू मॉडरेट। जो एग्ज़ाम का ओवरऑल लेवल होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बट एज फार एज लिसनिंग पार्ट 1 इज कंसर्न, सो you will experience one word type of questions only and it will be very easy अंडरस्टैंडेबल डायलॉग बेस्ड कन्वर्सेशन होगी जहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, ऑक्यूपेशन, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इट विल बी बेस्ड ऑन सेंटेंस कंप्लीशन, दैट मीन्स वन वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स और अ नंबर। देन जहाँ तक बात आती है लिसनिंग पार्ट 2 की, सो लिसनिंग पार्ट 2 में कंटेन टोटल 3 सेट ऑफ क्वेश्चन including 2 different set of multiple choices of question। ऐसे multiple choices of questions where you can experience 3 options, out of 3 options you have to choose any one correct answer, and in the second part where they give you 5 total options and out of 5 you need to choose 2 correct options, 2 correct answers। Then apart from multiple choices of question, in part 2 again आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपको मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आएंगे, मैचिंग द नेम्स, मैचिंग द इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन की थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं जहाँ तक पार्ट 2 की बात आ रही है। देन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद द पार्ट 3। जो पार्ट 3 होगा वहाँ पे आप एक्सपीरियंस करेंगे थोड़ी सी फास्ट एंड थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चंस दैट विल बी बेस्ड ऑन multiple choices of questions। You may experience more multiple choices of questions in part 3 and some matching the option type of questions। जहाँ तक बात आती है पार्ट 4 की, तो लिसनिंग पार्ट 4 will be easy and you will experience only one word of question and the question type will be based on sentence completion, right? It will be fluent, it will be fast, so there are quite chances that students having problem in understanding fast listenings, they may experience or they may find it difficult, but otherwise it would be easy to moderate। Now talk about the reading part। तो कैसे रहेगा रीडिंग आपका? जो रीडिंग का ओवरऑल लेवल रहेगा इट विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जो प्रीवियस टेस्ट आए थे वहाँ पे टेस्ट का लेवल मॉडरेट रहा है, but 3rd of September you can expect that it will be moderate to difficult। Some part of the reading passage will be easy and some will be tricky, so practice accordingly। You can refer Cambridge book 17, Cambridge book 16 and 15, 14। तो बात करते हैं रीडिंग के सबसे पहले पैसेज की। The passage 1 will contain only 2 type of questions: sentence completion with one word or a number and true false not given। So I suggest you, recommend you to give only 15 to 17 minutes in your passage 1, don't give more than 15 minutes here। And in part 2, that means in reading passage 2, आप experience करोगे जो set of questions, there are quite chances to have which paragraph contain the following information, list of heading type of question or some multiple choices of question along with some sentence completion। Then as far as the part 3 of reading passage is concerned, तो यहाँ पे रहेगी multiple choices of question, yes no not given and match the headings with the suitable persons। साइंटिस्ट हो सकते हैं, years दिए जा सकते हैं आपको, तो आपको मैचिंग करनी है क्वेश्चंस की। तो ये रहेंगे आपकी रीडिंग के पैसेजेस में आने वाले क्वेश्चंस। आई एम रिपीटिंग, द रीडिंग विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। सम पैसेजेस विल बी इजी एंड हो सकता है पैसेज 2 या पैसेज 3 में से कोई एक रीडिंग पैसेज आपको थोड़ा सा ट्रिकी, कंफ्यूजिंग लगे, टाइम कंज्यूमिंग लगे, सो आप उसी अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करें। देन द राइटिंग इज, जहाँ तक बात आती है राइटिंग
राइटिंग की, तो एकेडमिक स्टूडेंट्स राइटिंग पार्ट इन पार्ट 1 यू मे एक्सपीरियंस कंपैरेटिव ग्राफ एंड ग्राफ विद द ट्रेंड। पिछले एग्जाम्स में बार ग्राफ पूछा गया था स्टूडेंट को, which was very easy, but in 3rd of September IELTS test it can be possible that you will experience some line graph, table, and don't forget to practice process and map also. Now, as far as the task 2 is concerned, in the previous test students have experienced opinion based essay, that means agree disagree type of question, but now in the 3rd of September IELTS prediction you need to practice more discussion based question, that means discuss both views and give your opinion, और इसी के साथ साथ आप advantages disadvantages, is it a positive or negative development type of questions की थोड़ी सी अच्छे से practice करके ज़रूर जाएं। As far as your speaking is concerned, so it's very important for those students who just registered their test for 3rd of September कि आपको ऐसा हो सकता है कि स्पीकिंग के कुछ नए टॉपिक्स एक्सपीरियंस करने पढ़े, बिकॉज अभी से ही इवन कि 27 ऑफ अगस्त के टेस्ट में भी बहुत से बच्चों को नए क्यू कार्ड्स पूछे गए हैं। बट आई वांट टू टेल यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने वो सिचुएशन कभी नहीं सुनी। सेंटेंस जो है वो सिर्फ थोड़ा सा मोल्ड होकर आ जाएगा, यू कैन ईजिली फ्रेम एन आइडिया, स्टोरी बना सकते हो आप, बट यू नीड टू बी मोर कॉन्शियस एंड अलर्ट। पुराने क्यू कार्ड्स में से ही आप कोई स्टोरी, अगर नया क्यू कार्ड आता है तो उसमें फ्रेम कर सकते हैं, बट देयर आर क्वाइट ब्राइट चांसेस दैट यू विल एक्सपीरियंस न्यू स्पीकिंग टॉपिक्स इन योर अपकमिंग आइल्स टेस्ट। तो मुझे अपने टेस्ट डेट्स के बारे में ज़रूर बताएं, मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी स्पीकिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, जिससे कि नेक्स्ट कैंडिडेट्स भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो या किसी भी तरह की आइल्स प्रिपरेशन को लेकर जानकारी चाहिए अगर आपको, तो हमारी टीम के साथ ज़रूर जुड़िए। थैंक यू।